ملاحظہ فرمائے حیرت کدھا سلسلے میں ناصر آباد ایک کہانی کی پہلی 10 اقساط کا مختصر جائزہ آپ نے پہلی قسط میں دیکھا کہ یہ ارجنٹائن نامی ملک کے آخری مغربی صوبہ ٹیرو کے شہر ناصر آباد اور شہر گوٹو کی کہانی ہے، جو کہ مسلم اکثریتی صوبہ ہے، اور صوبے کا مرکزی شہر ناصر آباد ہے جس کے درمیان میں دریا گزرتا ہے اور مشرقی کنارہ گوٹو شہر کہلاتا ہے اور مشرقی کنارہ ناصر آباد کہلاتا ہے۔ گوٹو شہر گنجان اور گھنی آبادی پہ مشتمل ہے اور خالص شہر ہے، جبکہ مغربی کنارہ پہ آباد ناصر آباد تھوڑی آبادی اور دیہی کلچر رکھتا ہے۔ اس کہانی کے مرکزی کردار دہشت بٹ، سعید بٹ، رضیہ بٹ اہم کرداروں میں شامل ہے، تاہم بعد میں سعید دہشت بٹ کے بیٹے سعد سعید بٹ، حماد سعید بٹ، تنویر سعید بٹ مرکزی کردار بن جائیں گے، تاہم دیگر کچھ عارضی کردار اور مستقل کردار کسی اچھے برے واقعے کی وجہ سے خاص توجہ اور اہمیت حاصل کریں گے۔ قسط نمبر 2، آپ نے دیکھا کہ گوٹو شہر کے مشرق کی جانب شہر کے قریب ہی کرسچن مسلم مشترکہ دیہات کا آغاز ہو جاتا ہے، جہاں دونوں مذہب کے درمیان ایک معاہدہ ہے، ہم آہنگی اور برداشت کا۔ قسط نمبر 3 میں آپ نے جانا کہ ریتا برادری، جو ٹیرو کی سب سے بڑی برادریوں میں ایک ہے جس میں واضح اکثریت کرسچن کی ہے اور ٹیرو کی واحد کرسچن کمیونٹی ہے جس کا سربراہ مائیکل چریتو ہے جو MPA ہے اور انڈر ورلڈ ڈان بھی ہے اور کالی دنیا کا بیتاج بادشاہ بھی ہے، پر بیسیوں لوگوں کا قاتل مگر سبھی مقتولین بھی انڈر ورلڈ سے تعلق رکھنے تھے۔ قسط نمبر 4 میں آپ نے دیکھا کہ انڈر ورلڈ ڈان مائیکل چریتو کی بین المذاہب ہم آہنگی کی پالیسی کے مسلمان کمیونٹی معترف ہے، حالانکہ وہ فسادات اور مذہبی کارڈ بھی استعمال کر سکتا تھا، مگر وہ اسلامی تقلیبات میں شرکت کرتا ہے اور بلا معلومات اور بلا آداب تقریر کر بیٹھتا ہے، لوگوں میں تشویش پھیل جاتی ہے، وہ خود ساختہ بے تکے واقعات سنانے لگتا ہے، وہ بھی بے معنی، منتظمین کسی ہنگامے سے پہلے ہی اس کا موضوع تبدیل کرا دیتے ہیں، پھر دوران نعت اسے نیند آ جاتی ہے، وہ بہت حقیقی قسم کا خواب دیکھتا ہے، دراصل وہ خوابوں کو آنے والے وقت کی پیشن گوئی سمجھتا ہے، اس سے پہلے بھی وہ کئی بھیانک خوابوں کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ قسط نمبر 5 مولانا اظہر ناصر آبادی، جن کے خلاف مذہب۔ قسط نمبر 5 مولانا اظہر ناصر آبادی، جن کے خلاف مذہبی حلقوں نے فتوے دے رکھے تھے، وہ پروفیسر بھی ہیں، وہ 3 موضوعات پہ تقریر کرتے ہیں: مسلک، ملحدیت اور تبلیغ کی ضرورت و اہمیت سے آگاہ کرتے ہیں۔ لوگوں کی بڑی تعداد آئی تھی۔ تقریب کے دوران سٹی چیئرمین اقبال قصوصی ڈان چریتو کی خوب خاطر تواضع اور آب و بھگت کرتا نظر آتا ہے۔ مولانا رات بہت طویل خطاب کا اختتام کرتے ہیں، ان کے متعلق مذہبی حلقوں کا رویہ بدل جاتا ہے اور دوستانہ ہو جاتا ہے، عوامی پذیرائی بھی مل جاتی ہے۔ تقریب کے اختتام پہ ایک شریر لڑکا ظفر مائک اوون کر کے اس میں چیخ مارتا ہے، لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ قسط نمبر 7 مولانا کے خطاب کے بعد عوام میں ایک عجیب سی لہر چل نکلتی ہے، ہر ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ایسے میں ایک سیاہ رنگت والے سیاہ گالا اشاکیوں کے متعلق افواہ پھیل جاتی ہے، انہیں زندہ بدروح کہا جاتا ہے۔ مولانا اظہر متعلق مذہبی حلقوں کی مخالفت کیوں پیدا ہوئی، وہ غلط فہمیاں کیا تھیں، اور مولانا پہ فتوے لگانے میں بے وقوف سٹوڈنٹس کا کردار۔ قسط نمبر 8 مولانا اظہر کی اقبال قصوصی ہاؤس میں چریتو سے ملاقات، اس کے بھیانک 16 خواب اور پھر بھی اکھڑ گفتگو۔ اقبال قصوصی مولانا سے ناراض۔ مولانا نے اقبال قصوصی اور چریتو کے درمیان آدھی رات کو ہونے والی گفتگو اور بھیانک انکشافات سن لیے، جس نے مولانا کے رونگٹے کھڑے کر دیے کہ ایک مسلمان مفادات کی خاطر اتنا بھی گھس سکتا ہے۔ قسط نمبر 9 بابا کھوجی کا تعارف، موکلات سے حیرت انگیز فلاحی کام لینے والا بابا کھوجی اچانک منظر عام پہ آ گیا، مگر اس کے عمل میں بہت سے بے گناہوں کو رگڑا لگ جاتا، مگر کیسے یہ سب قسط نمبر 9 میں بہت وضاحت سے بتایا گیا ہے۔ قسط نمبر 10
बाबा खोजी की कामयाबियां मुजरिमों पे क्या बीतती है जब बाबा खोजी उनके मोहल्ले में आता है। कुछ लोग नाहक चोरी का शक करते हैं। जिन्नाती दुनिया का तारुफ उनका एहसान भी जानलेवा हो सकता है। अब आगे देखिए टिस्ट नंबर 11। दुआए खैर। ए अल्लाह हमारे घर बना को खैर और बरकत वाले। ए अल्लाह हमारे घरों को हिदायत और तकवा वाले घर बना दे। ए अल्लाह हमारे घरों को पर्दा पोशी और सेहत वाले घर बना दे। ए अल्लाह हमारे घरों को खुशी और फरहत वाले घर बना दे। ए अल्लाह हमारे घरों को मग़फ़िरत और रहमत वाले घर बना दे। है अल्लाह हमारे घरों को सुकून और आराम वाले घर बना दे। ये अल्लाह हमारे घरों को कामयाबी और फलाह वाले घर बना दे। कि अल्लाह हमारे घरों को तस्बीह और इस्तग़फ़ार वाले घर बना दे। आमीन सम आमीन। डीलर और चाचा छूटो जिसने अब तक 9-10 अलग अलग नौयत के काम किए मगर बतौर छूटो कभी किसी वेल्डर के पास, बतौर छूटो कभी चाय के ढाबे पे, कभी किसी ऐसे दुकान नुमा होटल पे जहां मुख्तलिफ कस्म की हंडियाएं भी पकती थीं, कभी किसी पेट्रोल पंप पे, कभी किसी बड़े प्रॉपर्टी डीलर की दुकान पे जिसने एक मुख्तसर सा किचन भी बना रखा था, क्योंकि उसे या तो बाजारी खाने और चाय पसंद थी ना थी, भले थी कितनी थी लजीज हूँ, या फिर डॉक्टर ने बाजारी खाने और घी की ज़ियादती से मना किया था, या महज इसलिए कि खुद बनवाया खाना बाजार से सस्ता पड़ता, या फिर मतलूबा शख्स ने तमाम होटलों का एतबार खो दी क्योंकि वो उधारी चाय और आधार खाने पे दर पे मंगवाता रहा, वो भी गोश्त और कीमा और मज़्ज़ा फ्राई, वो भी ऑर्डर पे अपने लिए, मुलाजिमीन के लिए, बड़े कस्टमर्स के लिए, हत्ता के घर जाते हुए भी किलो 2 किलो स्पेशल ऑर्डर पे पकवा के हमरा ले जाता। जब होटल वाले महीने के इख्तिताम पे बल भेजते तो वो हमेशा 50,000 से ज्यादा होता तो इसका सर घूम जाता। ये इन्हें फरादिए झूठे कहकर इनका जायज़ बल भी देने से इनकार कर देता, महज 5,000 थमा देता। कहा 50,000, कहा महज 5,000, गोया 45,000 का नुकसान। फिर खूब मुंह मारी होती, वो रजिस्टर भी उठा लाते, ये रजिस्टर को ये कहकर इनकार कर देता कि रजिस्टर भी तुम्हारा, पेंसिल भी तुम्हारी, जो दिल में आया लिख दिया, वो कौन सा सच है मैं उसे मानता थी नहीं। फिर बात दुकानदार यूनियन तक जाती, वो भी होटल वाले को सच्चा करार देते और कहते आप एक मर्तबा होटल वाले की सारी अदायगी कर दो, आइंदा दोनों फरीक अपने अपने रजिस्टर करना। ताहम ये यूनियन पे भी इल्ज़ाम लगा देता कि तुम लोगों की अपनी दुकानें चलती नहीं, सारा दिन फारिग बैठे रहते हो, तुम लोगों ने तो शक्र किया कि तुम्हारे हाथ कोई केस आया है जिससे तुम्हारी जेब में भी कुछ रकम जाएगी, इसलिए एका करके आए हो और मेरे पास कोई फालतू पैसा नहीं। गोया यूनियन अपनी इज्जत की खातिर पीछे उठ गई। फिर होटल वाला थाना पहुंच गया। जब बात पुलिस के पास गई तो वो बदज़बानी नहीं कर सका और थाना इंचार्ज के फार्मूले के तहत 3 अक़सात में अदायगी की। और जब भी होटल का मुंशी पैसे लेने आता तो ये फिर से इससे उधारी चाहे या उधार खाना मांगता, वो साफ इनकार कर देता और कहता तुम पता नहीं किस मुंह से फिर से उधार मांग रहे हो, तुम्हें तो हम नकद कैश पे भी इनकार कर दे, भले थी हमारा खाना ना बके और खराब हो जाए और ये भर देगचे कोड़े पे फेंकने पड़े, ये कहकर वो अपनी रकम लेकर चल देता। जबकि कोई दीगर कारोबारी शख्स मशहूर होटलों के लजीज खानों में भी टडी मुखी, मच्छर, काकरोच की कोई टांग बाजू या पर बरामद होने से बदल हो गया, इसलिए उसने जाती किचन बना लिया। बहरहाल बात कंजूस मालिक और होटल वालों मालिक की, ये 2 कस्म के मालिक ही, एक कंजूस दूसरा बददियानत। जब कंजूस के यहाँ चाचा छूटो को नौकरी मिली तो वो इतना कंजूस था कि महज अपने पीठ के साइज के बराबर खाना पकवाता। गोया चाचा छूटो का एक नवाला चखना भी उसे गवारा न था।
गोया इसके लिए खाना पकाकर उसे सैर करा के भी चाचा छूटो महज पानी पे गुजारा करता और घर लौटकर रात का खाना खाता। अलबत्ता कंजूस तनख्वाह बर वक्त अदा कर देता। वैसे भी तनख्वाह भी बहुत थोड़ी थी, मगर वो कंजूस दो वजूहात की बनाह पे खाना पकाने के दौरान चाचा छूटो के सर पे खड़ा रहता। पहली वजह ये थी कि खाना पकाने के दौरान वो मुसलसल हदायत देता रहता, मसलन उसे और भी भून, नमक थोड़ा तेज कर, घी थोड़ा कम कर वगैरह। दूसरा, वो चाचा छूटो से खाना पकाना भी सीख रहा था ताकि जल्द चाचा छूटो की छुट्टी करके खुद कुकिंग कर ली करे और छूटो की तनख्वाह की भी बचत हो। इसके अलावा इसके खड़े होने का ये भी मकसद था कि कहीं छूटो चख ना ले और इसका खाना कम ना पड़ जाए। जब वो छूटो के सर पे खड़ा होके कुकिंग के दौरान हदायत देता, अगर इसकी हदायत कामयाब हो जाते और वाकई खाना लजीज पकता तो सारा क्रेडिट इसका अपना, और अगर तजुर्बा नाकाम हो जाता तो सारा मलबा छूटो पे के इसने ध्यान से नहीं पकाना। अब जिक्र दूसरे कारोबारी का जो कि बददीनत था। अगरचे छूटो को बहुत इज्जत व एहतराम देता, मुंह का बहुत मीठा जैसे मीठी छुरी, छूटो को छोटा भाई तक कह देता। इतना एहतराम देखकर छूटो को खुद भी इतनी इज्जत अच्छी ना लगती। वो आदी थी ना था, क्योंकि पूरी जिंदगी बेइज्जत में गुजर गई। अब इज्जत के अल्फाज इसके लिए अजनबी थे। उसे यकीन ना आता कि उसे पुकारा जा रहा है, उसे लगता जैसे किसी और को पुकारा जा रहा है। वो बजाय जवाब देने के और लोगों की तरफ देखने लगता जैसे उनमें से किसी को पुकारा गया है। ताहम ये इज्जत देना भी इसका एक हथियार था। तनख्वाह अरब करके भी उसे बल्ला तनख्वाह भी कई महीनों तक काम करवाते रहने का। बहरहाल बात है चाचा छूटो की। उससे बहुत जौनर बड़े बच्चे बतौर छूटो भर्ती होते। शुरू में जान डपट होती रहती, मगर वो काम जल्द से जल्द सीखते जाते और बेहतर से बेहतरीन बनते जाते और तेजी से बेइज्जत से इज्जत की मनाजिल तय करते जाते। बहुत जल्द होटल के मुंशी या मालिक का एतमाद मिल जाता। फिर थोड़े ही अरसे में बाइज्जत छूटो बन जाते। अपनी हाजिर दिमागी और चालाकियों व मकारियों और चुस्ती एनर्जेटिक होने की वजह से, हत्ता कि जल्द थी वो होटल में छूटो के बजाय अपने असल नाम से पुकारे जाने लगते। तमाम होटल का अमला व मुलाजिमीन, हत्ता कि होटल के मुस्तकिल गाहक भी नाम से पुकारने लगते, जबकि होटल इंतजामिया इनकी नाराजगी और गज़े और राय का भी लिहाज करने लगते जैसे कि वो बच्चा नहीं जवान बंदा हो। जबकि अब जिक्र उन होटल मुलाजिमीन का जो चाचा छूटो के हम उम्र थे। वो सिर्फ होटल मुलाजिमीन कहलाते, ना कि छूटो। इन्हें कभी दानित डपट ना होती, हत्ता कि इनकी गलती पे उनसे वजाहत मांगना और मुंह मारी बहस व तकरार होती, मगर एक तरफा दानित डपट बेइज्जत और गाली गलौच ना होती। उनका मौक़िफ़ भी सुना जाता और अक्सर औक़ात जब होटल का मुंशी किसी काम के सिलसिले में दूर या नज़दीक गया होता, या तो वही मुलाजिमीन बतौर होटल मुंशी के फ़राइज़ संभाल लेते। उसी तरह इनकी तनख्वाहें भी ज़्यादा थीं। वो ज़ाती उमूर के लिए 10-20 दिन की छुट्टी भी लेते। उनके कपड़े और जूते भी अच्छी क्वालिटी के होते, मगर छूटो चाचा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। दरअसल वो पैदाइशी तौर पे कम अक्ल और कम फहम था। किसी सादा से काम को भी 20 बार करके भी गलती कर जाता। गोया किसी काम को 12 करके भी जहन नशीन ना कर पाता। गोया हाफिजे का बहुत कमज़ोर तर शख्स उसी तरह किसी बात का माकूल जवाब देने की सलाहियत नहीं रखता, ना गाहक को या अपने होटल के अमला व मालिकान और इर्द गिर्द के दुकानदारों के साथ बहस व मबाहसा या मफादात का लेन देन या नई नई वाक़िफ़ियत बनाना और मुआमलात जोड़ना जानता है। ना अपने होटल वालों की ना थी किसी दूसरे की ज़रूरत बनना जानता है, ना अपनी आमीत मनवा सकता। गोया मौजूद है तो है, नहीं तो किसी को इसकी अदम मौजूदगी का एहसास थी नहीं। एक जगह से काम छूटने के बाद महीनों बेरोजगार फिरता, उसे जल्द कोई काम ना मिलता। फिर इसकी बीवी इसके दोस्तों के घर जाकर मिन्नत समाजित करती कि उसे किसी जगह काम ढूंढ दो, फिर वो काम ढूंढ कर देते। जबकि होटल के बाकी छूटो और इसके हम उम्रों के लिए नौकरियां थी, नौकरियां एक से बढ़कर एक, ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह और इज्जत वाली, लिहाजा वो मौजूदा नौकरी को किसी और अच्छी नौकरी के लिए छोड़ते। जबकि चाचा छूटो खुद नौकरी न छोड़ता बल्कि उसे निकाला जाता। हालांकि होटल मुलाजिमीन तो दरकनार होटल के छूटो बचे वो काम ना करते जो चाचा छूटो से लिया जाता, मसलन काले देगचे और कढ़ाइयाँ मनझुना, और जब वो धो कर लाता तो बच्चा छूटो होटल मुंशी को आंख मार देता तो होटल मुंशी इसकी धोई हुई कढ़ाइयाँ देगचे में निकालना शुरू कर देता और उसे दोबारा खूब जोर लगाकर धो कर लाने का कह देता, और चाचा छूटो को महज एक बच्चे की शरारत पे दोबारा धोनी पड़ती। गोया बच्चे की इज्जत और मकाम तो है मगर चाचा छूटो का नहीं।
उसी तरह एक बार होटल के साथ जुड़े गंदे नाले में कस्टमर की एक सलूकी घड़ी अलिफ चानक बाजू से खलकर नाले में जा गिरी। नाला गहरा और बहुत कदीमी है, काले बदबूदार पानी से भरा रहता है। होटल मुंशी ने देख लिया और मतलूबा शख्स को कि खाना खा के होटल से निकल रहा था उसे वापस बुलाया तो वो हैरत से बोला, मुझे क्यों बुलाया? मैंने अभी अभी तो सारी पेमेंट की है। मुंशी बोला, जी जी मुझे पता है, मगर मैंने इसलिए बुलाया है कि जब आप बाहर निकल रहे थे तो आपकी बहुत चमकदार सी चीज नाले में गिरी है। क्या आपको मालूम है कि वो क्या था? जी वो मेरी घड़ी थी, मुझे मालूम नहीं हो सका कि कैसे बाजू से खलकर नीचे जा गिरी। चलो अब जब वो नाले में थी गिर गई तो क्या किया जा सकता है सिवाय सब्र के। जार है इतने गंदे नाले से कोई निकाल भी तो नहीं सकता। मुंशी ने कहा, एक मिनट आप मेरे पास बैठे, मैं कुछ करता हूँ। उसने तमाम मुलाजिमीन पे नज़र डाली तो उसे मालूम हो गया कि उनमें से कोई भी ये काम नहीं करेगा, बल्कि मैं बतौर मुंशी उनसे ये बात कहने की अमद भी नहीं रखता, क्योंकि इनके मिजाज और जवाब और गुस्से को जानता हूँ। फिर इसने बचे छोटुओं पे नज़र डाली, उनमें भी कोई इस काम के लिए मौजू कोई ना था। बाज बच्चे भी बड़े मुलाजिमीन के मिजाज अना और गुस्से वाले थे, जबकि बाज अगरचे खामोश तब ज़रूरत थे, मगर जब घर जाएंगे तो इनकी माँ या बाप या भाई या बहन लड़ने आ जाएंगे कि आपने हमारे बच्चे से इतना गंदा काम क्यों लिया। एक तो इसके हाथ पाँव और जिस्म गंदा हो गया, ऊपर से इसका लिबास नाकारा कर दी। किया हमने बच्चे को यहाँ इसलिए छोड़ा है कि वो होटल के साथ साथ नाले से लोगों की चीजें निकाल कर दे, और इनका मौक़िफ़ सुनकर होटल का मालिक भी मुंशी पे शदीद बड़म होगा। लिहाजा इस काम के लिए ना कोई बड़ों में कोई मौजू ना थी बच्चों में। अचानक इसकी नज़र चाचा छूटो पे पड़ी, जो हर लिहाज से मौजू भी था और इससे बुला झझुक बात भी की जा सकती थी। लिहाजा उसने चाचा छूटो को बल्लाकर दौलालचे दे, एक ये कि अगर नाले से तुमने घड़ी बरामद कर ली तो बाकी दिन के लिए तुम्हारी छुट्टी, घर जाके आराम करना, और दूसरा ये कि नाले में घुसने की वजह से जो तुम्हारा कपड़े बर्बाद होंगे उनके बदले में मैं अपने इस्तेमाल शुदा 2 लिबास तुम्हें तोहफे में दे दूंगा। फिर क्या था, वाकई चाचा छूटो गंदे नाले में उतर गया और नाले के कचरे में खूब हाथ मार मार कर ढूंढने लगा। ये मंजर देखकर वो कस्टमर जैसा की घड़ी गिरी थी भी कहने पे मजबूर हो गया, इन्हें वापस बिला ली, बस रहने दे, वो घड़ी इतनी भी कीमती ना थी। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि मेरी घड़ी की खातिर एक बुजुर्ग शख्स गंदे नाले में घुस जाए। ताहम 1.5 घंटे तक गंदे नाले में घसे रहने के बाद बिलाखिर चाचा ने वो घड़ी ढूंढ ली। उस शख्स ने चाचा को इस घड़ी की कीमत से भी दुगना इनाम भी दिया और घड़ी भी चाचा को दे दी। हर इंसान की कदर दुनिया में इसकी ज़रूरत के मुताबिक होती है। बिल्कुल यही उसूल काम वाली जगह, दफातर, खानदान, ससुराल और कारोबारी मराकज़ में भी होता है। बाज़ लोग नाजायज़ बातें भी मनवाते रहते हैं, हत्ता कि 2 दूसरे लोगों से उनकी फितरत के खिलाफ बातें भी मनवा लेते हैं, जबकि कुछ लोग अपना जायज़ हक मांगने की सलाहियत भी नहीं रखते, और बाज़ तो इससे भी इतने गए गुजरे होते हैं कि अपना वो हक भी नहीं मांग सकते, हालांकि जिसके ना हासिल करने से वो ज़नी या जिस्मानी कम या ज़्यादा अजियत या मसाइब से थोड़े या ज़्यादा वक्त के लिए 2-4 रहते हैं और अपनी ज़ात पे सब बर्दाश्त करते हैं। इसलिए इंसान को कभी बूझा शराफत, कभी गूंगा नहीं होना चाहिए। जहाँ ज़रूरी हो इंसान अपने जायज़ हक के लिए गर्जदार और बेलहाज अल्फाज और लहजे में आँखों में आँखें डालकर बात करने की सलाहियत रखता हो, वरना इसमें और खूंटी से बंधी भीड़ बकरियों और गाय भैंसों में कोई फ़र्क नहीं। बसा औकात होटल में मुंशी कहता, ओए छूटो टेबल नंबर 9 पे जल्दी खाना पहुंचाओ। टेबल नंबर 9 वाले गाहक कहते, ओए कैड़ा ऐ छूटो यारे छेती कर, ली भूख लगी है। जब चाचा खाना लेकर आता तो वो कहते, अल्लाह मुआफ करे ऐदा वडा छूटो, ए छूटो ते मेरे अब्बा ते ताया अब्बा कोलों भी वडा, अगर ए छूटो एफर उसी ते हले अंडे विच एहो जिया छूटो पता कथों बरामद होंदा, ए जदों मौतैदा घना पौधा छंडो ते एक इस चाचा छूटो वर्गा वडा जिया पुलिया पिलाया कैड़ा थले डगड़ा ए। उसी जिंदगी विच पहली वार एडा वडा छूटो वेखिया ए, एनो वेख मैनू ते वडा काकरोच याद आ गया ए। तीसरा बोला, उसी नदी ते मछली फड़न जांदे ते जड़ी गीली जगह ते रनबा डौनगा मारने एथों एक एहो जिया वडा ते पुलिया पिलाया गडुया निकल आंदा ए। वैसे इस होटल विच कदे कोलो छोटा ए, मैं ते कहंदा वहाँ होटल छट पूरे बाजार दा अबा ए।
एक कहता, ओ भाई ये बुजुर्ग बंदा है, उसे छोसो ना कहो बल्कि इज्जत दो यार, बुरी बात है। इस पे मुंशी बोला, आपकी बात दुरुस्त है, मगर पहले चाचा का मुंह तो देखो। बजाय बुरा मनाने और बेइज्जत महसूस करने के उल्टा वो बाकियों से भी ज्यादा खलकर अपने आप पे हंस रहा है। इसके बाद क्या रह जाता है, वो खुद ही बेइज्जत महसूस नहीं करता तो हम क्या करें। और वैसे भी मजाक तो आपके दोस्त उड़ा रहे ही, रोकना है तो इन्हें रोको, उल्टा आप हमसे कह रहे ही, हमने तो कुछ कहा थी नहीं।